हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर। ये एक सैम्पल पेपर है पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट करंट सेशन 2023 टू 24 का। और सबसे पहले है रीडिंग सेक्शन। ये 10 मार्क्स का है। रीड द पैसेज गिवन बिलो। द रोल फ्रेंड्स प्ले इन आवर लाइफ्स हैज़ बिकम सिग्निफिकेंटली ग्रेटर दैन एट एनी अदर टाइम इन आवर हिस्ट्री। फ्रेंड्स जो रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, आज के टाइम में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना कि वो कभी हिस्ट्री में नहीं रहा। टुडे मैनी ऑफ अस लिव एंड वर्क एट ग्रेट डिस्टेंसेस फ्रॉम वेयर वी वर बॉर्न और वी ग्रू अप एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम आर ओरिजिनल फैमिलीज। द पेन वी फील व्हेन वी आर अवे फ्रॉम आर फैमिलीज कैन बी सिग्निफिकेंट। द हैप्पीनेस ऑफ द इंडिविजुअल relies on friendships which form a necessary human connection. It is perfectly normal to need and want friends, and depression is more prevalent among those who lack friends. They lack the intimacy and richness friends can bring into our lives. Frequently, friends reflect similar values to us, yet these values are often different from the ones we grew up with. They are the values we created for ourselves in our adult lives. Communication skills are fundamental in all friendships. The more friends and acquaintances one has, the greater are one's communication skills. Some call these skills people skills. Like watering a plant, we grow our friendships and all our relationships by nurturing them. Friendships need the same attention as other relationships if they are to continue. These relationships can delightfully non-judgmental, supportive, understanding and fun. Sometimes a friendship can bring our positive side that you never show in any other relationship. This may be because the pressure of playing a role like a daughter, partner or child is removed. With a friend you are to be yourself and free to change. Of course you are free to do this in all other relationships as well, but in friendships you get to have lots of rehearsals and discussions about changes as you experience them. It is an unconditional experience where you receive as much as you give. You can explain yourself to a friend openly without the fear of hurting a family member. How do friendship grow? The answer is simple: by revealing yourself, being attentive, remembering what is most important to your friend and asking them about it, putting yourself in their position, showing empathy, seeing the world through the eyes of your friend. You will understand the value of friendship. In turn, we gain values of tolerance and acceptance for our own differences. Friendships offer a great opportunity to learn about yourself because a friend can reflect back to you how you come across in the world. They also allow you practice skills in dealing with personal boundaries by looking after yourself as well as your friend. They help you develop resilience in relation to the wider social world beyond your family. Now, based on the understanding of the passage, answer the following questions. First is, we are separated from our families as we. हम families से separated अलग क्यों रहते हैं? Because we feel important? No. Because we have become significant because we live and work at distant places. क्योंकि हम कहीं दूर रहते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं. So C ऑप्शन करेक्ट है. पैसेज के अकॉर्डिंग वन कॉज ऑफ डिप्रेशन इज, डिप्रेशन का एक कारण क्या है? लैक ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का ना होना. वन कैन इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स बाय, कम्युनिकेशन स्किल्स आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? क्रिएटिंग रिचनेस बाय हैविंग मोर फ्रेंड्स. बी ऑप्शन इज करेक्ट. कम्युनिकेशन स्किल आर ऑल्सो नोन एज, कम्युनिकेशन स्किल्स को और क्या कहा जा सकता है? सो कम्युनिकेशन स्किल्स people skills. According to the passage, find out the odd one. Technological skills, active listening skills, negotiation skills, questioning skills, ये तीनों ही social skills है. Technological skills ये different है. So A option is correct. Why do friends play a more significant role today than ever before? आजकल फ्रेंड्स इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करते हैं जितना पहले नहीं करते थे? बिकॉज वी गेन मनी थ्रू फ्रेंडशिप, बिकॉज टुडे वी आर स्टेइंग. यस, ये करेक्ट है, क्योंकि आजकल हम अपनी ओरिजिनल फैमिली से दूर रहते हैं फॉर वर्क एंड एनी अदर रीज़न. नेक्स्ट, कंप्लीट द लाइन. फ्रेंडशिप्स ऑफर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट योर सेल्फ बिकॉज फ्रेंडशिप्स एक
ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपको देते हैं खुद के बारे में सीखने के लिए, क्योंकि यस, सो फ्रेंडशिप ऑफर करते हैं ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट योर सेल्फ बिकॉज अ फ्रेंड कैन रिफ्लेक्ट बैक टू यू हाउ यू कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड। ये ब्लैंक में आप फिल कर देंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज मेंशन वेदर ट्रू और फॉल्स। फ्रेंडशिप्स इज लाइक अदर रिलेशनशिप्स। फ्रेंडशिप भी दूसरे रिलेशनशिप्स के जैसे ही है। इट नीड्स द सेम अटेंशन दैट दे नीड। उसको भी उतनी ही अटेंशन की ज़रूरत है। ट्रू स्टेटमेंट है। मेंशन 2 एसेंशियल ह्यूमन वैल्यूज़ दैट हेल्प फ्रेंडशिप टू ग्रो। कौन सी 2 एसेंशियल ह्यूमन वैल्यूज़ हैं जो फ्रेंडशिप के थ्रू हम ग्रो करते हैं? टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस फॉर आर डिफरेंसेस। ए ऑप्शन इज करेक्ट। परसिवरेंस, हार्डवर्क, मेंटरशिप। ओके, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैरा 2 विच इज सिमिलर टू सैडनेस। सेकेंड पैरा से सैडनेस ऑपोजिट, सिमिलर टू, सेम मीनिंग वर्ड ढूंढना है। सो आई थिंक डिप्रेशन होगा। सैडनेस, डिप्रेशन। वैसे डिप्रेशन एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल इसमें यही एक वर्ड है। ओके, सो डिप्रेशन। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इज राइटिंग एंड ग्रामर। ये भी 10 मार्क का है। यू आर पदम, ऑफिस इंचार्ज एट वायुसेना स्कूल। आपका नाम पदम है, वायुसेना स्कूल में आप ऑफिस इंचार्ज है, संत कॉलोनी, विशाखापट्टनम। एक ऑर्डर आपको प्लेस करना है स्टेशनरी आइटम्स का स्कूल ऑफिस के लिए टू मॉडर्न स्टोर, न्यू मार्केट, विशाखापट्टनम। 5 मार्क का क्वेश्चन है। सो सबसे पहले आपके स्कूल का नाम वायुसेना स्कूल, संत कॉलोनी, विशाखापट्टनम, डेट जब आप ये लेटर लिख रहे हैं, फिर स्टोर का नाम मॉडर्न स्टोर, न्यू मार्केट, विशाखापट्टनम, सब्जेक्ट ऑर्डर फॉर ऑफिस स्टेशनरी। सर, दिस इज़ विद रेफरेंस टू आर मीटिंग ऑन 3 जुलाई 2023। 3 जुलाई को, इससे पहले जो हमारी मीटिंग हुई थी, ये लेटर उसके रेफरेंस में है। वेयर वी विजिटेड योर स्टोर, जहाँ पर हमने आपके स्टोर को विजिट किया था, इन कनेक्शन विद परचेज ऑफ स्टेशनरी प्रोडक्ट्स फॉर आवर स्कूल चिल्ड्रन। यहाँ पर हमने बात की थी कि हमें अपने स्कूल के बच्चों के लिए कुछ ऑफिस स्टेशनरी की ज़रूरत है। वी आर प्लीज टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। तो हम इन आइटम्स के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। कुछ आइटम्स के नाम आप लिखेंगे, ब्रांड कौन सा है, कितनी क्वांटिटी, कितने आपको वो चाहिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव अ डिस्काउंट ऑफ 15% दैट वॉज अग्रीड अपॉन। जब बात हुई थी हमारी तो 15% का डिस्काउंट देने के लिए आपने अग्री किया था, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 15% का डिस्काउंट दिया जाए। फुल पेमेंट विल बी मेड बाय चेक ऑन डिलीवरी। जैसे आइटम्स डिलीवर होंगे आपको फुल पेमेंट मिल जाएगी चेक से। वी होप टू अ लॉन्ग बिजनेस रिलेशनशिप विद यू। हम उम्मीद करते हैं कि एक लंबा बिजनेस रिलेशनशिप होगा आपके साथ। प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड फॉर एनी क्लैरिफिकेशन इन द ऑर्डर डिटेल्स। कोई भी डिटेल में आपको कोई क्लैरिफिकेशन अगर चाहिए हो तो आप अंडरसाइंड पदम, जो ऑफिस इंचार्ज है वायुसेना स्कूल के, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट रिगार्ड्स एंड देन आपका नाम। ओके, नेक्स्ट इज अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। किन्हीं 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 5 मार्क का ये आपका लेटर है और 5 मार्क की फिर ग्रामर है। 10 मार्क का सेक्शन है ये। पिक द करेक्ट ऑप्शन। ईच स्टूडेंट ब्लैंक टू अंडरस्टैंड द इशू। सो ईच स्टूडेंट हैज़ टू अंडरस्टैंड द इशू। Correct the error. A typical mountain climbing group will have 8 to 15 people in it with an equal, ये तो क्लियर है, with an equal number of guides। तो ये एरर है, an आना चाहिए था। Read the sentence given below and complete the statement using the correct option। We blank take care of our elderly parents and grandparents। को हमें टेक केयर करना चाहिए, it is our duty। So duties obligations के लिए आएगा ought to। We ought to take care of our parents and grandparents। This is a line from a horoscope
कॉर्नर ऑफ अ न्यूज़पेपर में जो वो भविष्यवाणी वाला कॉलम आता है उसका ये एक लाइन है, सप्लाई द करेक्ट यूज़ ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। सो उसमें लिखा है कि स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली के साथ आज क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। अ शॉर्ट ट्रिप ब्लैंक लाइकली टू हैपन इन द कमिंग डेज। सो अ शॉर्ट ट्रिप इज़ लाइकली टू हैपन, होने वाली है कमिंग डेज में। नेक्स्ट इज यस्टरडे मॉम वॉज आउट फॉर शॉपिंग। कल मेरी मदर बाहर गई थी शॉपिंग के लिए। शी केम एंड सेड टू मी, वो वापस आई और उन्होंने मुझसे कहा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, एक ग्लास पानी लाने के लिए। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन रिपोर्टिंग हर सेंटेंस। इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आप रिपोर्ट करते हैं उनके सेंटेंस को तो आप कैसे करेंगे, शी कमांड्स मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कमांड्स नहीं आएगा, ईडी होना चाहता है। शी रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, शी आस्क्ड मी टू ब्रॉट, शी ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग हर, तो हर नहीं आएगा, टू मी होता तो फिर हर आता। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, शी रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज दिस इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम द इंटरव्यू ऑफ अ रैंकर इन CSE। अ नॉविस लाइक मी, नॉविस मतलब जो नया नया सीखने वाला है कोई चीज़, लाइक मी वॉज गाइडेड बाय द एबल मेंटोर्स ऑफ माई स्कूल। अगेन choose the correct reporting of his sentence. So he said that a novice like him had been guided by the able mentors of his school. यही correct है. He said that a novice like him is guided by the, he said the novice like him, no is, okay, first option ही correct है इसमें. He said that a novice like him had been guided by the able mentors of his school. Now next is literature section. इसमें बुक के क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ये 20 मार्क्स का है। सो रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो पोएम से ही है ये। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री वॉज गिव माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, एकदम से जो पोएट है उसका मूड चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। ओके, फर्स्ट इज व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक सिम्बलाइज। इसमें क्रो और जो हेमलॉक है वो किसका सिंबल है? सो वो है एक सैडनेस और डिप्रेशन का सिंबल। सो द क्रो एंड हेमलॉक सिम्बलाइज सैडनेस, सॉरो एंड डिप्रेशन, जो पोएट उस टाइम पर फील कर रहा था। फर्स्ट इज द मूड ऑफ द पोएट चेंज्ड बिकॉज, पोएट का मूड एकदम से क्यों चेंज हो गया? बिकॉज ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट उसके ऊपर गिरी स्नो की उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट इज व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे। जब पोएट कहता है कि इसकी वजह से मेरा कुछ पार्ट जो है दिन का वो बच गया, तो इससे उसका क्या मतलब है? क्योंकि एकदम से जैसे ही डस्ट उसके ऊपर गिरती है तो उसका मूड ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो यहाँ पर बात कर रहा है कि कितना नेचर में कितनी पावर है, एक अनएक्सपेक्टेड और ट्रांसफॉर्मेटिव पावर के बारे में। तो सो द पोएट मीन्स दैट दो इट इज़ अ सिंपल इवेंट, एक बहुत ही सिंपल सा इवेंट था डस्ट ऑफ स्नो का गिरना क्रो के आने के बाद, लेकिन फिर भी उसमें एबिलिटी थी कि वो उसने उसके मूड को, आउटलुक को एकदम से चेंज कर दिया। सो इट मीन्स दैट इट इज़ अ सिंपल event, yet it has the ability to change his mood and outlook on life. Next is who shook the dust of snow. Dust of snow नीचे किसकी वजह से गिरी थी? क्रो की वजह से। So a crow on the hemlock tree shook down the dust of snow on the poet. Next is what did the tree has on it then? ट्री के ऊपर क्या था पहले? It had dust of snow. Okay. Next is answer the following questions in 40 to 50 words. 3 मार्क के क्वेश्चंस हैं तीनों। फर्स्ट इज वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजी? एंड व्हाट
सॉरी वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, उन्होंने लेटर को एज गॉड क्यों साइन किया। तो जब पोस्ट मास्टर ने लेंचो का लेटर पढ़ा जो उसने गॉड को लिखा था, वो बहुत ही इम्प्रेस हुआ, और क्योंकि पोस्ट मास्टर बहुत एक काइंड ह्यूमन बीइंग था, तो वो चाहता था कि जो फेथ है लेंचो का भगवान में वो शेक ना हो, वो टूटे ना उसका भरोसा। तो उसने अलग अलग सोर्सेज से पैसा इकट्ठा किया और उसको लेंचो को भेज दिया। और गॉड इसलिए लिखा उसने ताकि उसको लगे कि ये पैसे गॉड ने ही भेजे हैं और उसके जो बिलीव्स हैं, फेथ है, वो इंटैक्ट रहे। सो द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी, द पोस्ट मास्टर was a kind man and he was very impressed by Lencho's faith, and he did not wanted to shake his faith. So he collected money from different sources and sent it to Lencho, and he signed the letter as God, because signed the letter as God to keep Lencho's faith in God intact, ताकि उसका जो भरोसा है वो भगवान में बना रहे। नेक्स्ट इज लेंचो कॉल्स द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स। लेंचो रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स बता रहा था। वाई डज ही कॉल देम सो, उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि बारिश जब होगी, रेन ड्रॉप्स आएंगी, तो उसकी फसल अच्छे से ग्रो होगी, हार्वेस्ट करेगा वो क्रॉप को, तो एक तरीके से प्रोस्पैरिटी आएगी, पैसे उसको मिलेंगे। तो इसीलिए उसको जो रेन ड्रॉप्स थी वो न्यू कॉइन्स के जैसे लग रही थी, क्योंकि अल्टीमेटली वो कॉइन्स लेकर आएंगे उसके पास। सो लेंचो कॉल्स द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स बिकॉज द रेन ड्रॉप्स हेल्प हिम ग्रो एंड हार्वेस्ट द क्रॉप, एंड विच result in more prosperity. So he compares the raindrops with new coins. Next is Lencho describes the post office employees as a bunch of crooks. लेंचो को क्योंकि ये लगता था कि जो मनी थी, कुछ पैसे उन्होंने रख लिए हैं, जो ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो डिसऑनेस्ट है, सो उसने उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स कहा। फर्स्ट इज वर दे अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्या एक्चुअली में वो बंच ऑफ क्रूक्स थे? नो, बहुत ही जेनरस काइंड लोग थे, हेल्पफुल थे, जिन्होंने लेंचो की हेल्प की थी। एंड हाउ वुड यू डिस्क्राइब देम, आप उनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? यही वर्ड्स होंगे। सो केयरिंग एंड जेनरस एंड हेल्पफुल। नेक्स्ट इज व्हाट डू द मेटाफोर्स ऑफ आइस एंड फायर कन्वे टू द रीडर्स। जो आइस और फायर है वो मेटाफोर्स हैं पोएम में, तो क्या वो कन्वे करते हैं, डोंट दे रिप्रेजेंट द टू एक्सट्रीम्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर? क्या आइस और फायर दोनों ही ह्यूमन बिहेवियर के दो एक्सट्रीम्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं? दैट कैन लीड टू द डिस्ट्रक्शन एंड डेथ ऑफ द वर्ल्ड, जो कि कारण बन सकते हैं वर्ल्ड में डेथ और डिस्ट्रक्शन का। वॉट इज़ द मैसेज दैट पोएट वॉन्ट्स टू गिव टू द रीडर्स, पोएट क्या मैसेज देना चाहता है रीडर्स को? सो आइस और फायर मेटाफोर्स हैं पोएम में। फायर जो है वो मेटाफोर है, कन्वे करती है ह्यूमन बींग्स की डिज़ायर को, उनकी ग्रीड को, जो लालच है उनमें। और आइस का मतलब है जो उनमें हेट्रेड है, रिजिडिटी है। तो पोएट का मानना है कि दुनिया जो ख़त्म होगी वो आइस या फिर फायर से ही होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा ग्रीड होगी उतनी ही ज़्यादा हेट्रेड बढ़ेगी, और स्लोली जो ह्यूमन बींग्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, और जो वर्ल्ड है उसमें डेथ और डिस्ट्रक्शन का ये दोनों कारण बनेंगे। सो द मैसेज दैट पोएट वांट्स टू कन्वे इज दैट द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड ईदर बाय फायर और बाय आइस। एंड फायर इज मेटाफोर, फायर here stands for
desire and greed, and I stands for hatred and rigidity. The more we satisfy, जितना ज़्यादा हम ग्रीड को सेटिस्फाई करते हैं, आर ग्रीड, द मोर इट इंक्रीजेस, उतनी ही ज़्यादा वो बढ़ती जाती है, एंड increases. And similarly hatred is also ruining humans slowly. So these two are extremes of human behavior that can lead to the destruction and death of the world. Okay, that's all students. ये था 10th क्लास इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.